after this show started, this is exactly how it started. We'd gone to meet both of them in his office. We were made to sit in a conference room. It seemed very, we were made to sit. Then the one door opened. That was not the door from where we came in. Another side private door opened, and it was like we went into that room and we went puja. So we said, "Acha, theek hai." Then puja made us sit somewhere. Then another private door opened, and it led to Mahesh Bhatt's cabin. And we went out there, and then for the next 5 minutes, Pooja Bhatt was telling Mahesh Bhatt, her father, where to sit and why he shouldn't be sitting on the sofa that he was sitting on. So I was just observing them, and I said, "Yeah, show to ban gaya. Hame tension hi nahi hai." So then he was looking at me keenly. He said, "What are you observing? Why are you speaking?" I said, "Sir, I have the show in my mind already. It's about the two of you fighting about things that matter to you or don't matter to you. But we need to have this on air." That's where the show started. They've done a fabulous job of it. The good part is that they are willing to be themselves on radio. Because radio में बहुत ज़रूरी है कि you are. That's where the show also came from there. The show name came from there, Bhatt Naturally, which is about them being natural in front of the mic. As far as experiences are concerned, they will tell you how it was. But I must tell you, on the first day, हमने सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात की. हमने शो के बारे में बिल्कुल बात नहीं की. We spoke about her green hair then, it is red now, and my blue shoes. That's all we discussed. The blue stays the same. Yeah, ये दगाबाज है, इन्होंने change कर लिया. Bhatt Sahab remains the same. His wit and sense of humor does not change. He's been asking me how the show's been doing, and that I've been a very bad person and not telling him how it's been doing. I think today we're celebrating the fact that this show is doing extremely well in all corners, every part of this broadcast. It remains unmanageable as usual. It's fabulous. You'd like to add something, or you want to take it from here? Whichever way. अभी सीढ़ी बजाने के बाद में बचा क्या है? I think the body does not lie. और हमारे जिस्म से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हमें कितना मजा आ रहा है ये शो करते वक्त. मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कह दूं कि जब संडे को हम ये प्रोग्राम सुनते हैं हमारे घरों में, तो मैं भी खुद अपनी आवाज़ सुन के, पूजा की आवाज़ सुन के, ओवरऑल के शो का जो एक इम्पैक्ट होता है उसको सुन के बड़ा प्रभावित होता हूँ. उसके लिए जिम्मेदार वो हमारे जो यहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमें टॉर्चर करते हैं, जो हमारे सारे ऐप को जो है दबा देते हैं और हमें कुछ संवार के आपके बीच में लाते हैं. तो आई थिंक इट्स बीन वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस. और जैसे मैं कह रहा था कि एक जुमला मुझे याद आ गया कि मैन इज मेमोरी एंड मेमोरी इज साउंड. इंसान एक याद है और याद एक आवाज है. जब भी आप अपने किसी करीब के रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं तो साथ में आवाज जहन में, दिल में गूंजती है. इसी वक्त कर लीजिए एक्सपेरिमेंट. अपनी माँ की आवाज और चेहरा एक साथ में आता है, लेकिन बिना उस आवाज के याद संभव ही नहीं है. तो कहीं पर इसकी जो बुनियाद थी, the journey of this began from the memory of listening to radio in the early 50s when we were growing up. अमीन सयानी साहब की आवाज़ थी और कहीं पर वो प्यास तभी जगी थी कि एक दिन ऐसा आए कि हम जाके मुल्क से बात करें और वो देखो, कहते हैं सबने बड़ा सोच समझ के देखो कि पूरे हो जाते हैं. And then Shah came and we got this brilliant opportunity to address, I mean to not address politicians, address we don't guy लड़की या कोई ऐसा इंसान जिसने हमारी आवाज़ सुनी नहीं, जब उसके जहन में हम एक जगह बनाएंगे लगेगा कुछ हासिल किया है. And that itself is great enough motivation. And बातचीत करते करते सवाल जब हमको पूछे जाते हैं तो हमको उस वक्त अंदाजा होता ही नहीं कि हमारे अंदर ये सब कुछ कहीं पर किसी तहखाने में छुपा हुआ है. ये एक डिटेल निकल आती है और बात करते करते पूजा अचानक देखती है, कहती है अरे ये तो बताया नहीं है आपने हमको. तो अंदर जो है होता है कि बहुत बड़ी मेरे एक ऐसी बहुत बड़ी एक इमारत है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं.
So I think what this show is doing to me is unlocking a lot of memory worlds, जहाँ पर बहुत सारा कुछ खजाना जो है मेरा ही छुपा हुआ है, उससे रूबरू कराया है इस शो ने. So thank you very much for this opportunity, and I'm happy that possible नहीं है कि जिसमें हमको आ रहा हो उससे उसमें सुनने वालों को रोज नहीं आ रहा. It is not possible. जब भी हमने फिल्में बनाई जिसको बनाते हुए हमको मजा आया तो ऑडियंस को भी मजा आया है. So that is the acid test of anything good. But सच्ची बात ये है कि जब विशाल ने कहा कि बाकी शो हिट हो गया तो बड़ा अच्छा लगा. हम तरसते रहते हैं थोड़ी सी तारीफ सुनने के लिए. तो ये हिट लफ्ज जो है ना बहुत बहुत मुश्किल से हासिल होता है. हमारे नसीब में बरसात हिट की बहुत कम होती है, मगर जब वो बरसात होती तो उसमें भीग जाने का दिल करता है. तो हम यहाँ पर भीगने के लिए आए हैं बस. थैंक यू. अब क्या बचा? अच्छा, ये स्टाइल you are on radio and देखा जाए तो for the two of you have been a part of the film fraternity. माइक के पीछे you guys have obviously been what you all have been. लेकिन अब आप लोग माइक के आगे हो. What is it that really tempted you to do this radio show? I mean, we now claim it to be radio का सबसे controversial show. लेकिन वो एक ऐसी क्या चीज़ थी जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा tempt कर रही? I think it was very selfish. ये मैं कहती हूँ कि I would like to thank Radio Mirchi because आप हमें पैसे दे रहे हैं, हमें एक मंच दे रहे हैं. पैसे दे दिए? कब दिए? दे दिए. अच्छा. Maybe you are giving us the opportunity to make more memories. जैसे भट्ट साहब ने कहा कि what a week man is nothing but memories. तो मुझे एक मौका मिल रहा है अपने पिताजी के साथ वक्त गुजारने का one on one. ये जो टेप्स हैं, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये जिंदगी के लिए मेरी जो है मेरी जागीर हो गई. और यही मेरी इनहेरिटेंस है. Not some flat या not some money या not some film. ये memories जो हैं जो मैं भट्ट साहब के साथ create कर रही हूँ, ये जिंदगी भर के लिए हमारी आवाज उनके कंप्यूटर पे होगी. And this is something which I will be able to go back to when I need to go back to it. So I think thank you for that. And I think that to be able to do a show जहाँ पे आप बिना झिझक के दिल से actually बात कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपको बोलते हैं कि we want you to be you, but they want you to be you in reference to what is comfortable for them. तो यहाँ पे जो भी आवाज खराब भी होती है, ऐसी खराश भी होती है, तब भी वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. That's not a complaint. In fact, that's like he rightly said, वो intimacy जो है उसी में आती है. मुझे याद है जब मैं न्यूयॉर्क जाती थी और जब मैं एक एक्टिव एक्ट्रेस थी, बहुत बार मैं एक टैक्सी कैब में बैठ जाती थी और people would not generally recognize me because I don't look very Indian in that sense. मगर जब भी मैं बातें करती थी और एंड जब मैं उतरती थी, they would say कि are you पूजा भट्ट, और मैं कहती थी how do you know, बोले आवाज से आपको मैंने पहचान ली और अभी हम टैक्सी का फेयर नहीं लेंगे. तो तब मैं हंसती थी और बोलती कि मेरी आवाज तो बच्चन साहब की आवाज की जैसे है क्या कि people whatever. But like you rightly said कि हर आवाज की एक पहचान होती है. आवाज का एक चेहरा होता है. चेहरा होता है. हर आवाज का एक चेहरा होता है. So like you rightly said, जब हम रेडियो शो सुनते हैं, we also feel a sense of listening to ourselves like it's the first time. क्या ये मैं हूँ? Yeah. अच्छा. And actually, yes, yeah, exactly. And I must thank them, all these boys standing here, because वो हमें कहीं न कहीं they make us sound very intelligent and very less garbled than we actually are. But yeah, ये क्यों कर रहे हैं? Selfish reason. Makes me sound intelligent and you less garbled. I mean, it's garbled. No, but I think that it's this. I'm doing this simply because it gives me the opportunity to make memories with my father. It's selfish. अगर हाँ हमारी बात जो है, जब हम बिना कोई वीनियर किए, बिना कोई PR मशीनरी के थ्रू डालकर जब हमारे ऑडियंसेस तक पहुंचा पाते हैं, I think that is an opportunity that one has to be very grateful for. So thank you, truly thank you. But you people just said that, of course, it lets you be you, and this is also for a very selfish reason that you've done. But then, taking this forward, the kind of subjects that we're talking about on Natural, they're subjects that are very close to the two of you. So, were the two of you vulnerable at any given point of time tackling a particular topic? Or did it just flow? How is it? I think we are vulnerable when we are not vulnerable. Is what I've begun to realize. I think that
मुझे पता नहीं ये लगा कि जब इसको आप इंडियाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल रेडियो शो कहते हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्रोवर्शियल बात हमने आपस में की है या आवाम से की है, मगर शायद हमको अपने बारे में ये अंदाजा है नहीं कि हम जो कहते हैं वो शायद it can be pigeonholed into what is called a controversial slot. मगर नहीं, I don't think कि I ever felt a sense of discomfort के हिसाब ये, मगर हाँ मुझे लोगों ने आके कहा कि साहब ये तो बड़ा बात ब्रेकिंग शो है। हमारे जो पहला जो आपका प्रोग्राम था तो उस पर एक नौजवान डायरेक्टर है जो सुनने के बाद में उन्होंने आज कहा कि साहब आप कुछ वक्त से आगे चलते हैं ना। बोला कि ये जो बाप बेटी बैठकर एक मंच पर ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रही है तो ये तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है उससे कुछ अलग ही है। मैं बोला क्यों? इस मुल्क में ही तो हमारे पुरखों ने खुल के हर इशू पर बात किया। ये कहीं पर ये हम युद्ध सच्ची बातें घर में नहीं करेंगे, अपने औलाद के साथ नहीं करेंगे, अपने बड़ों के साथ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और क्या दूसरों का घर हमसे कुछ ज्यादा अलग है? नहीं। तो आई डोंट थिंक आई गॉट अ सेंस ऑफ doing something which is crossing the Lakshman Rekha. But yes, there was a response that I got from one of the young directors who felt that the show was good, but he said, "Thoda waqt se aage." But that's why they say, na, it's not necessary that you have to be young to have young thoughts. Yeah. So you can be young and have very पुराने ख्याल। तो आपका ये young director जो है actually काफी old fashioned है, और आप जो supposedly old है काफी actually young है because आप काफी forward है। तो पुराने लोग पुराने ख्याल नहीं, young people पुराने ख्याल is more the case actually. Youth does not mean that you will be forward, and that's young is not connected to the No. physical age. It's not guaranteed that just because you're 20 something you're going to be forward in your mind or your heart. सुन रहे हो तुम क्या कह रही हैं? तो जरा इंटरव्यू ये दो ना यहाँ पर। तो यंग ख्यालों से मैं इम्प्रेस होती हूँ, यंग शरीर और एज से मैं इम्प्रेस नहीं होती हूँ। It's said ना कि age is mind over matter. सोच, You don't mind. अगर it doesn't matter. सोच में झुर्रियाँ हो तो क्या करोगे? क्या? सोच में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हाँ जी। No, so topics have been on extramarital affairs, whether it's been sex, whether it has been the censor board. Like so far, which has been the most interesting topic for you guys? What I didn't expect to be interesting. जैसे for example हमने एक superstitions पे अंधविश्वास पे किया था एक एपिसोड, मुझे लगा था कि पता नहीं क्या बातें करेंगे, but that actually became the most interesting topic for me because वो बातों के दौरान we realized that there was so much there that we had to share and we learned so much. So I think it's a process जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि actually what's going to happen when we start recording, and it's wonderful because I think that you learn so much about you excavate. हम excavate करते हैं कहीं ना अपने आप को, and we don't come prepared, which is what is good. वरना क्या है कि अंडरवर्ल्ड पे जो था, अंडरवर्ल्ड पे एंड बॉलीवुड का जो रिश्ता है was a very explosive kind of topic, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग अंडरवर्ल्ड का शब्द वर्ड लफ्ज आया था तो सोच स्वर जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है और कहने के लिए बड़े बोल्ड है और ऐसी क्या बात हो जाती है पता नहीं, कोई इससे कुछ रूह सहम जाती है। तो जो हमारे साथ घटा, हमने जो झेला, हमने जो देखा, उसके बारे में हमने जैसे अपनों से बात करते हैं, क्योंकि जो सुनने वाले हमारे अपने ही हैं, वो फिजिकल फॉर्म में वहां पर मौजूद नहीं है, मगर वो इंटीमेसी का एहसास हमें महसूस होता है। तो उसके उस शो के दौरान मुझे लगा कि कुछ लॉट ऑफ buried truths which were there, जिसका हम ज़्यादा जिक्र करते नहीं क्योंकि अवसर ही नहीं आता, मगर कुछ सवाल लिसनर पूछता है आपसे क्योंकि उसके अंदर एक जेन्युइन प्यास होती है, और जब एक सच्चा सवाल कोई पूछना तो फिर वो आपको मजबूर करता है सच्चा जवाब देने के लिए। तो
तो तार वो छेड़ते हैं, सुनने वाले तार छेड़ते हैं आपके अंदर। जैसे मैं कहता हूँ कि जो म्यूजिक होता है वो संतूर में या सरोज में या सितार में नहीं होता, वो जो बजाने वाले के अंदर संगीत होता है वो उसके बजाने के ऊपर पूरा निर्भर होता है। तो आई थिंक लिसनर प्लेज अस, तो ये लिसनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कहाँ ले जाते हैं। हम तो वहां जाने को तैयार हैं जहां आप ले जाएं, बशर्ते आप वहां जाने को तैयार हैं तब तो चलते हैं आपके साथ, हम ताउम्र चलते रहेंगे जहां तक आप ले जाएंगे, चलते रहेंगे। And besides, I feel कि in this world that we live in, where everybody is so obsessed with perfection, कि even जब भी हम अपना candid side दिखाते हैं, उसे process करके दिखाते हैं, which is the problem I have with the new generation today. Everybody sounds the same, looks the same, is the same. Everybody is very politically correct. Nobody is making any mistakes. So I think that ours is genuinely a show where the attempt is not to gloss over. The attempt is to really answer truthfully, and to answer truthfully means to kind of expose your frailties, which is what we do. और एक बहुत ही अच्छा एक नई फीलिंग जो थी वो ये थी कि अक्सर ये होता है कि जब आप बोलते हैं कि आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है या आपको आपका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर द विजुअल recorder was not there. You were being recorded through your voice. Your voice was the only tool, your No, only and bridge. the truth is that I'm sure they will relate to this. The best part about doing radio is, you know what, कि बाल और मेकअप नहीं करना पड़ता है. सीधा जाग जाओ, आ जाओ, पहुंच जाओ माइक के सामने. You don't need to look. और केक खाते रहो, केक खाते रहो. ये केक बहुत खाती है शुभी. और तुम तो खाती है, साथ में शुभिता को भी लेके आती है खाने. Blame me. I'm responsible for everybody eating cake. Everybody. I take the responsibility. No, but पूजा, ये जो सवाल है नेक्स्ट, ये खास तौर पे लिसनर्स का पूछना है कि लिसनर्स को पूछना है कि पूजा भट्ट को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली जब एक औरत साफ बोलती है ना तो लोगों को लगता है कि गुस्सा आ रहा है उसको. और जब ये महेश जी जो है बहुत ही मतलब एक टोन में कुछ बोलते हैं, दिल से इतने इंटेंस इंसान है, मगर जब ये औरत बहुत एक तो थोड़ी बहुत खूबसूरत होती है और अपनी सेक्सुअलिटी के साथ कंफर्टेबल है और दिमाग भी क्लियर है और ना क्लियरली बोलती है, गुस्सा क्यों आ रहा है यार आपको मतलब you want me to be a glamour pose, but you want me to be subservient and say I don't know what I want. I know what I want and I know what I don't want. Most importantly, तो क्या है कि हिंदुस्तान में बहुत अजीब चीज है कि आप तो आपने औरत को तो देवी बनाई ही दी है, मगर आप औरत की लक्ष्मी के रूप, सीता के रूप, सावित्री के रूप से बहुत कंफर्टेबल हैं. मगर जब काली माँ जग जाती है उसके अंदर तो आपको बहुत प्रॉब्लम या बहुत तकलीफ होती है. तो मैं तो हूँ काली माँ भी, लक्ष्मी भी, सीता भी, सावित्री भी, सती नहीं बनूंगी मगर बिल्कुल नहीं बनूंगी. तो नहीं झेल पाएंगे तो ना झेलें, ना सुनना है तो रेडियो बंद कर दें, फॉलो नहीं करना है तो ना फॉलो करें. मगर क्या है कि मैं तो सोचूंगी, मैं तो जीऊंगी, मैं जो हूँ वो रहूंगी. इसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई चॉइस ही नहीं है. दिस इज माई नेचर, जो आपको 40 जीन्स के लिए कहीं ना कहीं सूट करना पड़ेगा. इनकी जागीर में आई है सब कुछ. ये मुझ पे केस करने वाली फॉर गिविंग हर बैड जीन्स. तो क्या है कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, चेंज इट टू पूजा भट्ट को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि महेश भट्ट को गुस्सा आता है. आता था, मगर वो लोग बोलते थे महेश भट्ट सच एन इंटेंस मैन. क्या है कि मर्द में आप गुस्से को बहुत अप्रिशिएट करते हैं मगर औरत में नहीं. So this is the problem, patriarchal society है. So you want to see me smile, you don't want to see the fury of a woman's nature. You only want to see the passive side of woman. I think the listeners have got the answer loud and clear. लेकिन of course moving on to the press conference, we're ready. We are good to go. Any questions you guys want to pop up? अब इसके बाद बचा क्या बोलें? I think we will do the photo op and then photo bites. Yes. Okay. What do we do? But naturally, the Pooja and Mahesh Bhatt show is a hit. हमें ये हिट शब्द जो है ना सुनने को बहुत कम मिलता है.
अगर हम पूरी जिंदगी को रिवाइंड करके देखें तो चंद वो ऐसे लम्हे हैं जहाँ पर हमें इतनी खुशी का एहसास हुआ है कि हमारा कोई काम जब हमने किया हिट हुआ है। तो ये रेडियो में हमारा जो पहला जो एक एडवेंचर रहा है और वो इज़ अ हिट। और इसके दौरान जैसे पूजा ने कहा कि एक नए मीडियम से अपनी आवाम तक पहुंचने का जज्बा तो हमारे अंदर था, मगर साथ साथ कहीं पर हमारे अंदर भी बहुत कुछ खुला है जिसने हमको चौंका दिया है। कुछ ऐसी यादें दफन थी जिससे हम शायद सालों नहीं मिले थे। तो द शो हैज़ बीन अ वेरी वेरी एंगेजिंग शो। और एक अहम बात यह है कि ये शो को जिंदा किया है सुनने वालों ने, क्योंकि जब सुनने वाला दिल से कोई सवाल पूछता है तभी हमारे अंदर से एक जवाब आता है जो जिंदा जवाब होता है। नहीं तो अक्सर थके हुए सवाल होते हैं, सुनने वाला जो है वो सवाल पूछकर सुनता नहीं है, मगर ये एहसास कि जिसने सवाल पूछा है वो हमसे सवाल पूछ के हमारे हर लफ्ज़ को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो हमें जिम्मेदारी देता है कि हम अपनी दिल की बात ईमानदारी से उन तक पहुंचाएं। तो आई थिंक इट्स बीन अ वन हेल ऑफ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जैसे मैंने कहा कि मैन इज़ मेमोरी एंड मेमोरी इज़ साउंड। इंसान एक याद है और याद एक आवाज़ है। कहीं पर हमारे अंदर ये बचपन में ही प्यास जगी थी कि काश वो दिन आए कि हम अमीन सयानी साहब का रेडियो प्रोग्राम सुनते थे, वेना का गीत माला, कि किसी दिन हम भी ऑडियंस से जुड़ेंगे रेडियो के द्वारा। तो सपने जो हमने देखे थे बचपन में वो पूरे हो गए। सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑन रेडियो। या एब्सोल्युटली, आई थिंक उन्होंने कह दिया है, मीडियम बहुत ही लिबरेटिंग है, बहुत ही पावरफुल है। और आई थिंक दैट आपको तो किसी यंग फिल्म मेकर ने एक्यूज़ किया है कि आप कुछ समय के पहले आ गए हैं, मगर हम आपका पेशा ही तो ये है कि वी आर ऑलवेज लिटिल अहेड ऑफ आवर टाइम्स। मगर हाँ, हमारे ऑडियंस से जुड़ने का ये जो मौका हमें मिल रहा है रेडियो मिर्ची के थ्रू, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो आपको मिल रहा है टू काइंड ऑफ मेक मेमोरीज। और ये ज़िंदगी भर मैं इस इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाऊँगी for my own satisfaction and as fuel for myself. So I'm very grateful for this chance. FM सुनना कितना पसंद करते हैं आप? मेरी हमेशा यही एक कंप्लेंट रही है कि समटाइम्स बातें कुछ ज़्यादा करते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि the music is also got priority and we kind of speak to the point. मगर हमें आई थिंक हमारे बायस लोगों ने कहा है कि आपकी आवाज़ हम ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो एज लॉन्ग एज पीपल से व्हाई आर वी नॉट हियरिंग यू इनफ इज़ गुड। मगर आई थिंक कि मैं एक्चुअली रेडियो अभी ज़्यादा सुनती हूँ नाउ दैट आई एम ऑन रेडियो माई सेल्फ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट। मैं सुनता नहीं हूँ रेडियो, मगर अब सुनना मैंने शुरू किया है और मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि रेडियो का जो मीडियम है कितना वेरी पावरफुल फैल चुका है, उसका कंटेंट कितना गहरा हो गया है और कितना रूटेड हो गया है। बिकॉज ऐसे कैंडिड बातें आप मतलब दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे कर नहीं सकते हैं। आई डोंट थिंक कि किसी ने हमें एक ऐसे अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम दोनों भट्ट साहब और मैं बहुत सारे टॉक शोज में शामिल हुए हैं, बहुत सारे मंच पे गए हैं, मगर इतने एक फ्री व्हीलिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अनसेंसर्ड टॉक जहाँ पे हमें वो रोकाते नहीं है। अगर गार्बेज बातें हो, अगर ओवरलैप होती है, कभी कभी गले में खराश होती है, मगर इट डजंट प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग एबल टू स्पीक योर हार्ट एंड माइंड। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ बहुत ही एक लिबरेटिंग प्रोसेस है कि बिना मेकअप के, बिना बाल, आपसे मतलब जाके यू जस्ट स्पीक। और आपने मुझे सिखाया था ये कि जब भी आप दिल से बोलेंगे तो लोगों के दिल तक पहुँचेगी, जब आप मुंह से बोलेंगे तो लोगों के कान तक बात पहुँचती है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम दिल से ही बोलें, चाहे लोग वो स्वीकार करें या ना, या एक्सेप्ट करें या ना, मगर बस दिल की बात आपके सामने डाल रहे हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप एक्सेप्ट करें या ना करें। लोग बोलते हैं कि कैंडिड हो, सच बोलो, मगर सच बोलो फिर उसके बाद में पत्थर फेंकते हैं। तो यार डिसाइड कर लो कि क्या चाहिए आपको, झूठ चाहिए या सच चाहिए। झूठ चाहिए तो हमारा शो ना देखें, बेहतर होगा। बहुत सारे चैनल्स हैं झूठ के लिए, मगर यहाँ पे नहीं मिलने वाला आपको। तो दिस इज अनवार्निश्ड, दिस इज अनसेंसर्ड, दिस इज स्ट्रेट अप, दिस इज अस विद ऑल आवर फ्लॉज। टेक इट
or leave it. Simple as that. You're listening to But naturally, the Pooja and Mahesh Bhatt show. कंट्रोवर्शियल टॉपिक शायद लोगों को लगते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि हमारी आदत है कि जो हम जिंदगी जीते हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं. हमें सिखाया गया, इसके लिए आधे लोग जो है घर के बाहर बड़े होते हैं. तो जैसे सेक्स को लेके जो टॉपिक है, लोग, मैंने तो यही कहा था कि लोग तो ये बोलेंगे कि एक ही मंच पे एक बेटी और बाप बैठ के सेक्स के बारे में बातें कर रहे हैं. मगर आई थिंक कि अगर ज़्यादा घरों में ये होता तो हमारे देश में ये there would not be such a problem of sexual abuse to begin with. लोगों को अपने rights, अपनी priorities समझ में आ जाती. सेक्स जो है एक बुरा शब्द समझा नहीं जाता क्योंकि कहीं ना कहीं if we demonize the term, and I think कि उसे normalize करना बहुत ज़रूरी है. तो I feel कि it is better to allow your children to grow up within your home than outside it, and that is फिर से opinion हमारा है. आपको ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी है. आप रेडियो ऑफ कर सकते हैं, आप ट्विटर पे हमें अनफॉलो कर सकते हैं, मगर हम जो हैं मेरा ये मानना है कि घर से बड़ी कोई पाठशाला है नहीं. मैंने तो अपने बचपन में स्कूल किंडरगार्टन में जाने से पहले अपनी माँ से बहुत कुछ सीख लिया था. तो घर जो है वो आपके अंदर सारी जो अहम सोच जो है खेलता है. और मेरे लिए मुल्क एक घर ही है. और अगर हम एक दूसरे से खुल के बात ना करें तो कहाँ से कोई चांद से आएगा आदमी, कोई मार्स से आएगा. तो ये हमने अपने दिल से एक बात कह दी. मगर जैसे मैं पूजा से अक्सर कहता हूँ कि सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत है. करेक्ट. एक जो सच बोल सकता है, दूसरा जो सच सुन सकता है. सही बात. हमने सच बोल दिया. आप में अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप बंद कर रहे हैं. और ना ही हम ये सोच आप पे थोप रहे हैं. ये हमारी सोच है, ये मेरी सोच है. अक्सर मेरी सोच इससे नहीं मिलती है. हाँ. ये मुझसे लड़ती है शो के दौरान. हाँ, तो आई थिंक कुछ तो फायदा हुआ कि महेश भट्ट के साथ डिसएग्री करने का, कि हमें एक शो मिला है, क्योंकि वो डिसएग्रीमेंट ही ये शो कहीं ना कहीं बनाती है. इफ वी अग्रीड ऑल द टाइम, आई डोंट थिंक वी वुड हैव अ शो. नहीं, और बच्चों को अधिकार है कि वो अपने माँ बाप से मुख्तलिफ राय रखें. सुनने वालों को अधिकार है कि हमारी बात सुनकर उसे डिसएग्री करें. हमने कब मान लिया है कि जो हम सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है. हमेशा ऐसी कुछ फहमी है नहीं है. हम एक लिमिटेड इंसान हैं जो अपनी लिमिटेड ज़िंदगी गुजारने के बाद में हम इस कंक्लूजन तक पहुँचे हैं जिसके आधार पे हम अपने सुनने वालों को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं. हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे लिमिटेड परसेप्शन हो. आई एम कम्प्लीटली comfortable agreeing with that, but I am saying it sincerely, and that's all that we can say. It's a truthfully expressed show. And also I feel कि आज के दौर में जब ये हर चीज़ इंजीनियर किया जाता है, every comment, हर किसी की राय कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड होती है जब तक लोगों तक पहुंचती है. मतलब लोग प्यार के बगैर मतलब चीखते भी नहीं है आज के दौर में. So I think, isn't it refreshing to just hear somebody say it the way they feel it, with all their flaws, with all their limitations. So I think that is the attempt. हम अपने घर में भी सांस संभल के लेते हैं. हाँ. कि भैया पता नहीं क्या बोल दिया तो उससे कौन सा जो है बक फूट जाएगा. अपने घर में ही हम इतने खौफजदा हो गए हैं कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम वी आर लिविंग इन. कोई सब सही बात साउंड करना चाहते हैं कि हमने सही बात कही है. दिल की बात जो है बहुत कम हम कहते हैं. And I think this is a platform where we speak our hearts. So listen to us with our hearts, your hearts.